भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। उसके ऊपर जो जयशंकर साहब ने जवाब दिया है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी भिखारी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के वो कहता है निकल जाओ तुम। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत से आगे बढ़े और कश्मीरियों के हक के लिए कोई प्रैक्टिकल जिद्दोजहद का हिस्सा बने। जब से नरेंद्र मोदी जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप लिया, तो भारत के अंदर जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसमें बहुत इजाफा हुआ। जय हिंद बंधुरा, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনাদের তো নিশ্চয়ই মনে আছে আজ থেকে 5 দিন আগে, হ্যাঁ বন্ধুরা, 5 দিন আগে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে প্লিজ অনেক হয়েছে আর না, এবার আপনারা আমাদের সাথে ব্যবসা তো পুনরায় শুরু করুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিক এমন টাইপেরই রিকোয়েস্ট করেছিল, কারণ একটাই, আজ থেকে 5 বছর আগে অর্থাৎ 2019 সালে ভারত যখন জম্মু কাশ্মীর থেকে বিবাদিত ধারা 370 কে তুলে নিয়েছিল, তারপরে থেকে পাকিস্তান ভারতের উপর প্রচন্ড রেগে বলুন বা অহংকারে বলুন, ভারতের সাথে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যবসা বা বিজনেসকে ওখানে স্টপ করে দেয়, বলে দেয় ভারতের সাথে আমরা আর কোনো বিজনেস করবোই না। দেন তারা ভেবেছিল এটাই, ভারতের হয়তো অনেক বড় ক্ষতি হবে, ভারত সরকার তাদের হাত পায়ে ধরে আবার রিকোয়েস্ট করবে আমাদের সাথে ব্যবসা করার জন্য। বাট এমনটা কিছুই হয়নি, হয়েছে এটা তারা উল্টো। হ্যাঁ বন্ধুরা, উল্টো কেন হয়েছে দেখুন, তারা যেটা ভেবেছিল সেটা একদমই হয়নি, বরং উল্টে তাদের ঘাড়ে এটা বড় বিপদ হয়ে পড়ে গেছে। তাদের অর্থনৈতিক যে হাল আজকের দিনে, সেটাকে পুনরায় আবার ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা ভারতের সাথে ব্যবসা করার জন্য রিকোয়েস্ট করছে। কিন্তু এর উপর ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি কড়া ভাষায় স্টেটমেন্ট দেয়, যদিও ব্যবসা সম্পর্কিত নয়, তবে একটা স্টেটমেন্ট অবশ্যই দিয়েছিল। ওনার স্টেটমেন্টটা ছিল ঠিক এমন যে হ্যাঁ, এক টেবিলে বসে কখনো জঙ্গিবাদ বা এরকম উৎপাদিত পাখি ফ্যাক্টরি শোরদের সাথে কোনো কথা হতে পারে না। এটা তখনই মীমাংসিত হবে যখন আপনারা উৎপাদিত জঙ্গিকে বন্ধ করবেন, তারপরে আমরা ভেবে দেখবো আপনাদের সাথে ব্যবসা করা যায় কি যায় না। অর্থাৎ যে দেশটা তারা নিজেরাই উৎপাদন করে শুয়োরদেরই, তাদের সাথে এরকম ভাবে ব্যবসা কখনো চলতেই পারে না। আগে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন, একই নদীতে জল বইবে না রক্ত, কেননা একই নদী দিয়ে দুটো জিনিস কখনো একসাথে বইতে পারে না। আগে আপনাদের দেশকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করুন, দেন তারপরে একটা ভালো দেশের মতন হয়ে আমাদের সাথে টেবিলে বসে কথা বলুন, তারপর আমরা ভেবে দেখবো যে আমরা আপনাদের সাথে ব্যবসা করবো কিনা। আর এই বিষয়টা পাকিস্তানের মিডিয়া ভীষণভাবে হাইলাইট হয়ে যায়, আর এটাকে ফিজা খান একদমই সহ্য করতে পারেনি। ফিজা খান ভাবছে যে ভারত আমাদের ডাইরেক্ট একটি দেশদ্রোহী দেশ বলছে, ভারত আমাদের ডাইরেক্ট একটি জঙ্গি উৎপাদনকারী দেশ বলছে। ফিজা খানের এই কথা শুনে পিছনে অনেক জ্বলে। যাই হোক বন্ধুরা, আগে ভিডিও ক্লিপটি তো দেখে নিন। इसका ज्यादा फायदा भारत को होता है, पाकिस्तान को सिर्फ ये फायदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर वो इजनास बड़ी महंगी उगती हैं, भारत में बहुत सस्ती उगती हैं, तो भारत उनको पाकिस्तान के हाथों बेच देता है। तो पाकिस्तान को कुछ चीजें सस्ती मिल जाती हैं मार्केट में और कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तानी किसान कहते हैं कि हमें होता है। जब इमरान खान साहब ने भारत से तिजारत की बातचीत की तो उस वक्त PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, ये जो जमातें PDM की हैं जो इस वक्त इमरान खान की अपोजिशन में थी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। जब इमरान खान ने कहा कि मोदी के साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हम एक कदम आगे बढ़ें, तो इन सारी जमातों ने इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया। और फिर बाद में एलिगेशन ये लगाया गया इमरान खान पे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, ये उन पे इल्जाम लगाया गया और बार बार ये इल्जाम लगाया गया कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल कब आया? वो तब आया जब 5 अगस्त, जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का एक खुसूसी स्टेटस था उसको खत्म कर दिया। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है, यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला? सबसे बड़ा मसला है कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर
तिजारत नहीं की जाएगी। तो मुझे ये लगता था कि हमने हमेशा ये नारा लगाया कि हम कश्मीरियों को आज़ादी लेकर देंगे, तो इससे बेहतर वक्त मुझे बतौर कश्मीरी नहीं लगता था कोई। मुझे भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत से आगे बढ़े और कश्मीरियों के हक के लिए कोई प्रैक्टिकल जिद्दोजहद का हिस्सा बने। और ये गलत नहीं है, पूरी दुनिया करती है ऐसा। आपने देखा कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के साथ लड़ाई की और काराबाग को आज़ादी दिलवाई। आपने देखा कि दुनिया भर में जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग हक मांगते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में कश्मीरियों को भी ये लगता था और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता था कि अब ये आखिरी लिमिट है, पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने कम से कम भारत के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। और जब इमरान खान साहब ताल्लुकात रखना चाहते थे उससे पहले, तो पीडीएम की जमातें और तमाम लोग इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तरीन इल्जामात लगाते थे। अब मामला ये हुआ कि इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दे दिया हुकूमत में आने के बाद कि भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएं कि उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। क्योंकि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली है कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं लिया जाता तो तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। लेकिन भारत बड़ा वाज़ेह है कि न सिर्फ 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद उसने कई और ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे 5 अगस्त वाली सिचुएशन पे तो वापस जाना, पहले वाली जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरी ये बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप लिया, तो भारत के अंदर जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसमें बहुत इजाफा हुआ। क्योंकि उनको लगता है कि ये भारत की गवर्नमेंट की तरफ से एक दुरुस्त इकदाम था। तो इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कई जो मसाइल हैं उससे वो दो चार है और बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ अफगानिस्तान आगे चल के बात भी करेंगे, जो हमारी ताल्लुकात की नौयत है हमारे सामने है। ईरान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है और वैसे भी ईरान के साथ ईरान पर जो मगरिब की पाबंदियां हैं, तो उस तरीके से फुल जो पोटेंशियल है वो आप रियलाइज भी नहीं कर सकते तिजारत का। तो ऐसी सूरत में बच के पीछे चीन रह जाता है जिसके साथ हम तिजारत करते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी मईशत को रिवाइव करना है, अगर उसके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात ना हो तो यकीनी तौर पर जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो फिर काफी गंभीर हो जाता है। तो इस तनाजुर में माजी में भी कोशिश हुई जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि तिजारती ताल्लुकात जो है वो बहाल किए जाए। और उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अनलाइक द पास्ट, जो माजी में कोशिश हुई, यानी कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो पाकिस्तान की फौज यानी कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती थी कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल हों। और उसमें जनरल बाजवा जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जो बैक चैनल चल रहे थे दोनों मुल्कों के दरमियान, और उस बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए जो उस वक्त के ISI के सरबराह थे जनरल फैज हमीद, उनकी कई मुलाकातें भी हुई। कहा जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, अजित डोवल, और उन मुलाकातों का ही नतीजा था कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने 2003 की जो सीज फायर थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसको जो मुआहदा था, अंडरस्टैंडिंग थी, उसको बहाल करने का फैसला किया। और आज तक वो जो अंडरस्टैंडिंग दोनों मुल्कों के दरमियान हुई थी फरवरी 2021 में, डिस्पाइट जितनी टेंशंस रही हो दोनों मुल्कों के दरमियान, वो जो सीज फायर है अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम है। তো বন্ধুরা, ভিডিওটিতে যেমন আপনারা দেখলেন বা শুনলেন, কি বুঝলেন? হ্যাঁ, ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজির কথায় ফিজা খান তো প্রচন্ড রেগে বা খেপে গেছে বা তেলে বেগুনে জ্বলছে। তাদের বক্তব্য ভারত এটা আমাদের কিভাবে বলে দেখুন। এই কথার পরে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া এখন বক্তব্য যে আমরা ভারতের সাথে আর ব্যবসা করব না। দেখুন, রশ্মি জ্বলে গেছে বাট এখনো বল যায়নি। কিন্তু আজকের দিনে পাকিস্তানে যা পরিস্থিতি, আমাদের না ওদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন আছে আর না তাদের সাথে ব্যবসা। সেম সিনারি হতে চলেছে কিন্তু আপনাদের বলে দিচ্ছি বাংলাদেশের সাথে। এই কথাটা মিলে রাখুন। ভারত সরকার জাস্ট একবার বাংলাদেশের মাথার উপর থেকে যদি হাতটা তুলে নেয় বা সমস্ত পণ্য যেগুলো এক্সপোর্ট করা হয় সেগুলো বন্ধ করে দেয়, বাংলাদেশকে আর দেখে কে? বাংলাদেশের অবস্থা পাকিস্তানের থেকে আরো খারাপ থেকে খারাপতর হবে। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ব্যাপারটি শুনে আপনারা কতটা আনন্দিত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। এর সাথে সাথে আপনারা যদি প্লিজ কেউ সাপোর্ট করতে চান, আমি ইউপিআই নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, সেখানে আপনারা সাপোর্ট করতে পারেন। সাপোর্ট আপনাদের অনেক প্রয়োজন। হ্যাঁ বন্ধুরা, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।